channel of Sagar College of Science, Baleswar. Now it is Corona time, as we all know. I hope you all are doing well, doing safe at your own place. Introducing myself, my name is Indira Das as English faculty in this college, that is Sagar College of Science, Baleswar. So today we are going to discuss a very nature romantic poem written by Robert Frost, that is Stopping by the Woods on a Snowy Evening. So I would like to request you guys to carry a piece of pen and a paper so that you could note it down whatever important points I am telling, that will help you in future to understand this particular poem. Okay, coming to the poetry section, there is a confusion among the students that poetry is the most difficult part of English literature, but I would like to tell you that poetry is the most easiest part. If you understand the meanings of the word which is written in the poetry and try to write it in your own language, that is in your own words, then it will be 110% easy for you and you will secure 10 on 10 on poetry section of English. So please pay attention and note it down whatever important things which you feel that I am telling in a piece of pen or paper, and also carry the book one with you so that you could understand whatever I am telling. Okay students, so एबे हमें start करिबा introducing the author. Author होची सीए जी ए पोएट टाको जे पोएम टाको लिखि चंती. Robert Lee Frost 1874 to 1963 is one of the most popular and critically acclaimed American poets. सी जने critically acclaimed American poets थिले. Critically acclaimed माने होची से बहुत judgmental थिले, बहुत philosophical थिले, और से जहाँ भी poetry लेखु थिले सब real life को relate करिकी, real life रो लोक मानकर joys और sorrow माने दुख सुख को relate करिकी लेखु थिले. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Depictions रो माने कौन? Portrait. ए लाइन रो माने होची सी सब बेले रिगार्ड करिकी चालू थरे रियल लाइफ उपरे, जेटा कि मु फर्स्ट लाइन रे भी कहिली जे सी सब बेले पोर्ट्रे करबा को चाहंती रियल लाइफ रे कोन होची, सो दैट छुआ माने तुमको लागिबनी जे तमे गुटे पोएट्री पढुछो. एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द पोएम तमे पूरा मेस्मराइज्ड हे जिवो, तुमको लागिबो जे तमे गुटे अलगा दुनिया रे चली जाइछो. Okay, after that what? His poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature and apparently small but deeply meaningful. कौन मु कहली से बहुत छोटिया छोटिया पोएम लेखंती, बट से छोटिया छोटिया पोएम मध्य भितरे एते डीप मीनिंग थाए जे आमे जे रीडर आमे पूरा मेस्मराइज हे जिबा से पोएम भितरे. तांकर कोन बहुत कीन इंटरेस्ट माने इनर ब्यूटी को से सब बेले फोकस करंती. इन वेरिंग ब्यूटीज वेरिएशन दियंती कोठी नेचर उपरे. सी गुटे नेचर लवर पोएट थिले, एटा भी मने रखिबो. And apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. जेटा कि मु कहली से सब बेले ओरिजिनल रियल लाइफ उपरे फोकस करिकी रियल लाइफ रो दुख सुख मनिषर एक्सप्रेस करबा को चाहंती निजर पोएट्री रे. सो स्टूडेंट्स एबे हमें स्टार्ट करिबा वार्म अप ऑफ द पोएम. ध्यान से सुनिबो. डू यू नो दिस पोएम वाज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू. Perhaps this poem reminded him of his responsibilities. ए दुटा लाइन रो हमें कौन जानिया को पाइलु जे ए पोएम टा जवाहरलाल नेहरू रो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएम थिला. जवाहरलाल नेहरू जे थिले तांको पोएट्री रे बहुत इंटरेस्ट थिला, तांको पोएम रियल लाइफ ऊपर पोएम को पढ़िबा को बहुत भलो लागुथिला. सेटा ही हमको पोएट कहबा को चाहुचंती. कौन? परहैप्स दिस पोएम रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज. जेटा मु कहली दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज माने कौन? ड्यूटीज. नोट करि पारो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रो माने होची ड्यूटीज. ए पोएम टी को लास्ट जाए तुम जतबेले पढ़ी सारिबो तुमको गोटिए जिंस रियलाइज हबो जे तुम लाइफ रे बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज किंबा ड्यूटीज अछि जेटा तुमको करिकी आगु को लाइफ रे बढ़िबार अछि. On the surface, this is a simple poem. एटा गुटे बहुत ही simple poem. The speaker stops his horse by some woods on a snowy evening. Speaker ए poem रे basic हमरो दीटा character अछंती. किए आम poet Robert Frost himself आउ तांकर horse, that means घोड़ा. एबे चली आसीबा आमे टिके वार्म करबा poem रे कोन आमे बुझिबा को जाउछु ता उपरे. The speaker stops his horse by some woods on a snowy evening. सी घर को फेरिला बेले गुटे snowy evening रे गुटे जागा रे जेटा कि woods कौन? The area which is smaller than the forest but bigger than the
बुशेस आम जेटा कहू छोट छोट गछपत्र बड़ हो किंतु फॉरेस्ट ठारू टिके छोटिया हो सेमिति गोटे जगार आम पोएट अटकी जाइथिले निजर घोड़ा सहित जीवा समय रे। He takes in a lovely scene in near silence and is tempted to stay longer but acknowledges the pull of obligations and considerable distance yet to be travelled before he can rest for the night. ए लाइन रो में कौन बुझिया को पाउछु जे पोएट पूरा से जगार मेस्मराइज हो जाइथिले सी चाहूथिले सेठी अटकेबा पई किंतु तांको माइंड रे सब बेले चली आस्थुला जे ना मते आगु को जिबार अछि काहे कि ना मोर रिस्पांसिबिलिटीज अछि मु निजो को निजे से एक्नॉलेज करथुले देखो लिखा छि एक्नॉलेजेस माने निजो को निजे से बुझौथुले कि मोर आगु को बहुत ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज अछि जहा फल रे मु ए कंफर्टेबल जगार निजो को रही कि एन्जॉय करे पारिबी नाही। But at the deeper level, the journey through the woods is suggestive of journey through life itself. मु कोन कहिथिली रॉबर्ट फ्रॉस्ट सब बेले लाइफ को डिपिक्ट करिकि निजरो पोएम लेखि थांती। सो ए लाइन रो हमकु पोएट एया कहिबा को चाहुचंती जे लाइफ रो जर्नी को से केमिति प्रेडिक्ट करिकि ए पोएम थ्रू रे हमकु बुझेबे सेया होची तांकर अटमोस्ट गोल माने मेन मोटिव ऑफ द पोएम इज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। The speaker stops for a brief time to meditate and realizes that he needs to continue his journey. स्पीकर गोटे जगह रही जाइथिले आखपाख एनवायरनमेंट को देखिकी पूरा मेस्मराइज हो जाइथिले किंतु तांको माइंड रे थिला कोन मु ए जगह रे ए कंफर्ट जोन रे निजुक रखि पारिबिनी मते आगु को जिबार अछि एज आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क बिफोर आई गो टू स्लीप एट नाइट। तापर लास्ट लाइन द फेमस फ्रेज एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप छुआ माने एटा होची पोएम रो मेन लाइन कौन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप यार माने कौन यार दुईटा माने अच्छी कौन कौन माने अच्छी नॉट ओनली रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप बट ऑल्सो द लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम कौन दुईटा माने कौन फर्स्ट माने होची द फिजिकल डिस्टेंस जेटा पोएट को हमर ट्रैवल करिवार अछि जदि से जगह रे रहि जिवो निजो कंफर्ट जोन रे एन्जॉय करिया पे ताने कौन हबो सीए आगु को बढ़ी परिबनी तार जर्नीटा कौन ब्रेक हे जिवो इनकम्प्लीट हे जिवो। So he has to remind what? Two things, the physical distance of the trip and the long life ahead him. तारो भी family अच्छी, तारो भी responsibilities अच्छी, तार भी बापा माँ भाई भौणी थिबे, तो ता प्रति भी तांकर responsibilities अच्छी। तो ए लाइन हमको दीटा दिन से कौन बुझेला? First point बुझेला जे he has to travel to complete his journey. Secondly, his responsibilities for the long life ahead him. Okay, so students take out your book and look at the paragraph number 1. Listen to me very carefully. Whose words these are? I think I know. His house is in the village though. एटी पोएट कौन कहबा को चेष्टा करछंती जे ए वुड्स थ्रू रु जेटा थ्रू रु से जाउछंती मते लागुची मु जानि छी एटा कहार से कोउटी रहउची मो विलेज पाखा पाखी रे से रहउची एट जे कहउची हिज हाउस इज इन द विलेज थो माने से कोन कहउची से रिमाइंड करूची से रिकॉल करूची जे हां ए लुकोटा जहार वुड्स थ्रू रु मु जाउची मते लागुची यार घरटा मोर ही विलेज पाखा पाखी तापरे कोन कहउची he will not see me stopping here to watch his wood filled with snow कोन कहउची he will not see me he एठी किए ही होची से लोकटा जहा कथा पोएट हमको कहउचंती जहा वुड्स थ्रू रु सी जाउचंती मन रखिबो छुआ माने कोन ही किए एठी ही होची से लोकटा जहा वुड्स थ्रू रु हमर पोएट जाउचंती पास करचंती जे वुड्स को देखि कि से पूरा मेस्मराइज हो जाइतले तार ओनर होची हमर ही एठी। Okay, so what? To watch his woods filled up with snow. As I said you that the woods are very mesmerizing for the poet and for the audience. Whoever will try to get into this poem, first तार mind रे कौन आसीबो जे woods रो beauty को poet describe करूचंती. So ए first paragraph रे में कौन जानिया को पाइलो जे हमरो poet travel करूचंती ताकर डेस्टिनी जीवा पथरे पड़ी जाउची कोन गोटे सुंदर स्नोई इवनिंग रे किछि वुड्स तापरे कोन होची से रिकॉल करूचंती जे हां ए वुड्स मते लागुची मु जानि छी ए वुड्स ता कहार ना गोटे लोकर जिए मोर विलेज पाखा पाखी तापरे कोन सी मते देखिबनी जे मु एठी छिडा होची बट मु तारो वुड्स को देखुची जेटा कि पूरा फिल्ड अप विथ स्नो कुहुडी जेटा को हमें कहू डीप स्नोफॉल जेटा को हमें कहू।
Okay, so coming to the second paragraph, कौन poet कहउछंती, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse nearby. कौन कहउछंती एठी छुआ माने queer रो माने होची odd or strange. कौन आमर पोएट एकम्पनी हेतले कहा संगरे तांकर घोड़ा संगरे सी जाउतले कोठी तांकर डेस्टिनेशन रे एबे हमर जे हॉर्स अछि पोएट रो सी कंफ्यूज हो जाई जे काहे कि मो मालिक ओई जगह रे छिड़ाई छी बिकॉज डिफरेंस होची सी गोटे हॉर्स सी ह्यूमन बीइंग नुहे सेति पई से बुझी पारुनी जे काहे कि मो ओनर ए जगह रे छिड़ा हेले एठी तो आख पाखरे कोनोसी फार्म हाउस नाही कि किछि नाही बट काहे कि मो ओनर एठी छिड़ा हेले एज ही इज एनिमल ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हिच हिज ओनर is enjoying in that environment. Okay, now you will be understanding what is the particular location where the poet is standing. Okay, so the location is between the woods and the frozen lake. कोठी तार एडजस्टमेंट टा होची जगहटा कोन पोजीशन बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक. व्हाई इट इज फ्रोजन? बिकॉज इट इज अ स्नोई इवनिंग, द वाटर हैज कंप्लीटली फ्रीज्ड इन द लेक. ओके दैट कोण रियलाइज करूछंती इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. किए रियलाइज करूची? घोड़ा रियलाइज करूची जे एटा सबुठो डार्केस्ट इवनिंग लॉन्ग नाइट ऑफ द ईयर फिर भी मो ओनर ए जगह रे काहे कि छिड़ा हेले बिकॉज द डिफरेंस इज ही इज अ एनिमल एंड हिज ओनर इज ए ह्यूमन. तो एठू हमें कौन जानिया को पाइलु? हमें जानिया को पाइलु जे एनिमल्स और ह्यूमंस भितरे अंडरस्टैंडिंग रो गुटे डिफरेंस थाए जेटा कि तार हॉर्स बुझी पारु नाही और से टिके स्ट्रेंज रिएक्ट करूची जे काहे कि मो ओनर एठी छिड़ा हला दैट से रिटर्न करूची कोठी ता फार्म हाउस को. से सब बेले घोड़ा जानि छि कोन मो मालिक मते छिड़ा करिवो कोठी फार्म हाउस पाकरे सेति कि तार माइंड रे कैपेबिलिटी अछि किंतु से हठात कि ना बुझी पारुनी जे काहे कि मझिरे मो ओनर छिड़ा हले. Okay students, so now coming to the third paragraph, what the poet is telling, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. He refers to the horse. एठी he किए horse कौन करूची सी तार मूवमेंट कौन करूची तार बेकरे गोटे घंटा बाजिची जेटा को सी बार बार शेक करूची. व्हाट? व्हाई इज ही शेकिंग द बेल? बिकॉज ही वांट्स टू गिव अ इंडिकेशन to his owner that something is wrong. Why are you standing over here? Why? Because the horse is an animal. He is anti-romantic. He has no feelings. But the owner of the horse is feeling the beauty of the nature at that time. So that is the reason. This is the basic difference which you need to understand between the horse and the owner of the horse. What? The horse is a subhuman. देखो ये लेखा भी है जी. The horse last जे मीनिंग ता हमर लेखा छी लवली डार्क एंड डीप. एटी कोन लेखा छी हमर ओनर होची प्रैक्टिकल आ बट कोन हमर हॉर्स कोन सब ह्यूमन जे कि ह्यूमन को अकम्पनी करूची. दैट इज द रीजन से बुझी पारुनी जे काहे कि मोर ओनर एठी छिड़ा हेले आ काहे कि से ताको तो फार्म हाउस जीवा कथा से मझरे छिड़ा कि कोन करछन बिकॉज ही इज एंटी रोमांटिक. ही इज अ एनिमल. ही हैज नो फीलिंग्स. ही हैज लाइफ बट ही हैज नो फीलिंग्स. तो कमिंग टू द पोएट कौन है एठी जे जे हमर हॉर्स से बारंबार कोन करछि तार बेकर जे घंटाटा को लागि छि सेटा को से बारंबार ही शेकिंग इट अप. व्हाई? बिकॉज he wants to give an indication to his owner that why are you standing over here? What's wrong with you? You have to travel to your farmhouse, but why you are standing over here? This is the main motive. This is the main message which the horse is trying to give to his owner. Why? Because horse is a subhuman. He has life but he has no feelings which the owner is feeling. The horse is not able to feel. That is the reason he is shaking his bell and trying to indicate to his owner that why are you standing over here. Next what happens? Next happens is the only other sounds that sweep is of easy wind and drowny flake. Sweep माने होची movement. लेखि पारो sweep रो माने होची movement. दीटा movement कौन होची sound रो? गोटे होची easy flow of wind. सुरसुर जे पवन टा वहे सेटा. Secondly कौन? Drowny flake. Drowny flake माने कौन? Pieces of snow falling downwards. ए दीटा ही sound. Particularly we are hearing two sounds. First is what? The easy flow of wind, and secondly is the snow of, and second is the pieces of snow falling downwards. Okay, so focusing on the last paragraph of the poem, what the poet is telling, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. What I said in the beginning, that only the poet is fascinated by the beauty of the woods. He is accompanied by his mate. सीए तार सांग कहि पारु आमे तार सांग किए थिला घोड़ा ताको अकम्पनी करूथुला ता जर्नी रे टुवर्ड्स हिज गोल. कोन कोन कहूची द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. द वुड्स
जो वुड्स रो सीनरी को जे डिस्क्राइब करूची सेटा को किए फील करूची ओनली द पोएट इज फीलिंग द ब्यूटी ऑफ द वुड्स बट आई हैव promises to keep here I is who I is the poet कोन से माइंड रिमाइंडर कोन निजर चिंता करचंती जे ना the woods is very lovely dark and but I have a lot of responsibilities to alter to fulfill I have hopes from my families towards the goal which I have come from ताको कोड रहिबार थिला ताको फार्म रे रहिबार थिला but he has stopped in the mid of the what in the mid of the jungle we can call it as jungle to enjoy the beauty of the snowy evening through the woods okay next what and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep here the poet is trying to make you understand 2 points first what his journey which he has to complete further he has to go secondly what his goals his responsibilities towards whom towards his family towards his relatives and his life cycle. So this is it. I hope you have understood whatever I have said. I would like to tell you few points for the betterment of your career as you are starting this +2 first year career. It is very important for you to understand the poem deeply. You should feel. सबुठ मेन जिनस होची खाली बुझी जीवाटा मेन इंपोर्टेंट नो यू हैव टू फील फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोएट तुमको बुझीबार अच्छी तुमको फील करिवार अच्छी अनलेस एंड अंटिल यू फील द पोएम यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल लाइन and another one thing which will help you in your future to understand this poem is the glossary words देखिथिबो एठी किछि वर्ड्स रो मीनिंग दिया हेची जेटा कि मु तुमको पढेला बेले मध्य कहिछि जे ए वर्ड रो माने होची एया ताको टिके एलाबोरेट करिके एठी एक्सप्लेन करा हेची जदि तुमे पोएम टाको गो थ्रू करला बेले एटा को पॉइंट ऑफ व्यू रो निज माइंड रे रखिबो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड इफ यू हैव लिसन टू मी दैट केयरफुली तुमे रिकॉल करि जिवो जे मैडम एई जगह रे एई पॉइंट टिको कहिथिले ओके सो कमिंग to the last thing that is we will be discussing this poems question answer in the next session and question answer pai hamper hobar nahi +2 first year re pura direct question ase no tricks and turns direct question direct answer so that's it I hope you liked my session thank you have a nice day